Hello viewers, welcome to ICSC Board Class 10 Chemistry episode 10.1. We are going to see about organic chemistry in this session. But before we go to the session, let me tell you that from this chapter around about 5 to 10 marks questions are likely to be asked in the board examination. This is my analysis that I have done looking to the previous 10 to 15 years papers. In this session we are going to study about, or in this chapter we are going to study about introduction, definitions, about hydrocarbons, types of hydrocarbons. Then we are going to study about their namings, structural formulas, IUPAC names, as well as how we are going to prepare those chemicals in the laboratory and their uses along with their equations. So let us move on to the chapter organic chemistry. Organic chemistry was used only for the study of such substances which were obtained from the living things, animals and plants. So whatever chemicals which were obtained from animals and plants was considered to be as the organic chemistry. And they said that it is very difficult to prepare all these things in the laboratory. But Friedrich Wöhler was the first to synthesize urea as an organic compound from the elements. Organic chemistry is a branch of chemistry dealing with the carbon compounds other than carbon monoxide, carbon dioxide and carbonates is called organic chemistry. The compounds of carbon other than carbon monoxide, carbon dioxide and carbonates are called organic compounds. So it should not have carbon dioxide, carbon monoxide and carbonates. Then rest of things are what? Organic compounds. All organic compounds contains carbon as an essential element. So the backbone of the organic chemistry is carbon. Along with that, there is also hydrogen and oxygen atoms. In more complex organic compounds, there can be sulfur, nitrogen, chlorine, bromine, iodine and phosphorus atoms in addition to carbon, hydrogen, oxygen. अगर आप देखना चाहोगे तो ऐसा होगा कि भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो कहाँ से आती है, तो कभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में से आती है, प्लांट्स एंड एनिमल्स में से आती है. और ये भी था कि भाई प्लांट्स एंड एनिमल्स में से आता है तो क्या हुआ कि हम ये लेबोरेटरी में प्रिपेयर नहीं कर सकते. लेकिन फ्रेडरिक वोलर ने क्या किया, एलिमेंट्स को लेके सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बनाया वो था यूरिया. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ये सब चीज़ें नहीं आनी चाहिए, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोक्साइड एंड कार्बोनेट शुड नॉट बी देयर एज वेल एज विद द कंपाउंड्स. हाँ, लेकिन कभी कभी आप देखोगे तो सल्फर, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फॉस्फोरस ये सब हो सकता है. लेकिन कार्बन का खुद का जो उसका जो सही दोस्त है वो कौन है, उसका फ्रेंड जो है वो है हाइड्रोजन. तो हाइड्रोजन तो अगर कार्बन के साथ में कोई भी नहीं होगा तो हाइड्रोजन तो होगा ही, वो उसका पक्का दोस्त है. सो हाइड्रोजन प्लस कार्बन गिव्स हाइड्रोकार्बन्स. सो दैट्स वाई दिस मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंसिस्ट ऑफ व्हाट? हाइड्रोकार्बन्स. ऑक्सीजन तो चलो होगा नहीं होगा चलेगा, लेकिन हाइड्रोजन तो होगा ही. लेकिन इनके साथ साथ में सल्फर, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड फॉस्फोरस तो देखने को भी कभी कभी मिलता है. वो सब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो जाते हैं. सो नाउ लेट अस सी व्हाट इज हैपनिंग विद द कार्बन एंड व्हाई दिस कार्बन इज एबल टू फॉर्म दिस पार्ट दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्यों किस तरह से. तो कार्बन जो एटम है उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में. टोटल अगर देखने जाओगे तो 6, जैसे कि फिगर में मैंने बताया हुआ है. यहाँ पे कार्बन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स है. उसमें से you know the electronic configuration of carbon, it is 2,4. that means 2 is in the K shell and 4 is in the L shell. so that means the outermost जो सेल होता है जिसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसे कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन. एंड द शेल जिसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है उसे कहते हैं वैलेंस शेल. यानी कि ये क्या हो गया, ये ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं कर रहा है. ऑक्टेट रूल फॉलो करने के लिए 2, 8, 18 ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं कर रहा है. उसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत पड़ती है? 4 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत पड़ती है. तो यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तो फिर वो कहाँ से लेगा? उसको चाहिए तो कहाँ से लेगा? वो लेगा जिसको 1 इलेक्ट्रॉन्स देना है, या तो फिर लेना है या तो शेयर कर सकता है. बराबर. सो कार्बन हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल. थस इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई इट्स वैलेंस शेल इट शेयर्स एन इलेक्ट्रॉन्स विद द नेबरिंग कार्बन एटम. अगर उसके बाजू में कोई उसका कार्बन बैठा है तो वो कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन या तो फिर उसका जो भी शेयर करने वाला इलेक्ट्रॉन्स होगा उसे वो शेयर कर देगा, और वो कोवलेंट बॉन्ड बनाते रहेगा. और ऐसे करते करते एक लंबी सी चेन बनती जाएगी, कार्बन 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 कार्बन.
बाकी के तो जो तीन है वो हाइड्रोजन सेटिस्फाई कर सकता है, या तो दो है वो ऑक्सीजन सेटिस्फाई कर सकता है। लेकिन कार्बन अपने नेबरिंग कार्बन के साथ एक बड़ा सा चेन, लंबा सा चेन, या तो फिर ब्रांच चेन या तो क्लोज चेन बना सकता है। So it is a unique property of carbon atoms to link with other carbon atoms to form a long straight or branch chains of any length or a closed ring of any complexity. Then this property of forming a long chain of carbon atoms with the neighboring one or branch one or whatever, then it is considered as a catenation. तो कैटेनेशन का मतलब क्या कि एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ या तो अपने नेबरिंग कार्बन के साथ एक चेन जैसा बना सकता है, लॉन्ग चेन जैसा बना सकता है। तो उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? कैटेनेशन। सो कैटेनेशन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम्स टू लिंक विद अदर कार्बन एटम्स टू फॉर्म अ लॉन्ग स्ट्रेट ब्रांच और एनी क्लोज रिंग्स इन इट्स कॉम्प्लेक्सिटी। दैट इज द मीनिंग ऑफ कैटेनेशन। तो मैंने पहले ही बता दिया कि अगर कार्बन के पास कोई भी और नहीं होगा तो हाइड्रोजन तो होगा ही। तो इसलिए हाइड्रोजन उसका पक्का दोस्त है। इसलिए जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उसे कहते हैं, ज़्यादातर हाइड्रोकार्बन्स ही होते हैं, उसे कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। और अगर आप हाइड्रोकार्बन्स देखने जाते हो तो हाइड्रोकार्बन्स दो तरह के आते हैं, एक तो एलिफेटिक वाला और दूसरा आएगा एरोमेटिक वाला। एलिफेटिक के अंदर जो होता है वो ओपन चेन, जो बंद नहीं होगी, वो कंटिन्यूस चलती जाएगी, दैट इज कंसिडर्ड एज ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स। लेकिन जो क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स होता है वो एक जगह से शुरू हुआ उसी जगह पे जाके खत्म हो जाएगा, दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज साइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। These are characterized. Aliphatic is characterized by the presence of straight or branch chain of carbon atoms in their molecules. यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे रिंग बन जाएगी, जहाँ से शुरू किया वहाँ पे जाके ख़त्म हो गया। यहाँ पे जहाँ से शुरू किया वो कहीं पे भी ख़त्म हो सकता है, वापस उसी पॉइंट पे नहीं आएगा। So that's why they are straight chains, while this one is closed and ring like structure. दूसरी एक चीज़ बता दूं कि एलिफेटिक जो हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो एक्चुअली किस तरह के होते हैं। एलिफेटिक जो हाइड्रोकार्बन्स होंगे वो अगर आप जलाओगे तो उसमें से धुआं या उसकी खुशबू नहीं आएगी। लेकिन साइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के अंदर बहुत ज़्यादा धुआं आएगा, ब्लैक कलर की सूट आती है, उसे कहते हैं सूट, SOOT, सूट, ब्लैक सूट, एंड इट प्रोड्यूसेस एरोमा। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स इस तरह से होते। सो दीज आर द टू एलिफेटिक एंड एरोमेटिक। इसके बीच का डिफरेंस मैंने बता दिया। एलिफेटिक का नंबर 1 आएगा ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, दे मे बी स्ट्रेच और ब्रांच, एंड साइक्लिक में आएगा दे आर बेसिकली क्लोज्ड वन रिंग लाइक स्ट्रक्चर। दूसरा मैंने पॉइंट बताया एलिफेटिक के लिए, वो ब्लैक कलर की सूट या स्मोक प्रोड्यूस नहीं करता, साथ में खुशबू ही प्रोड्यूस नहीं करता सॉरी। लेकिन साइक्लिक जो एरोमेटिक होगा वो खुशबू भी प्रोड्यूस करता है और ब्लैक कलर की सूट भी प्रोड्यूस करता है। एलिफेटिक के दो ब्रांचेस हैं, एक सैचुरेटेड वन और दूसरा अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है कि उसके पास सिर्फ सिंगल बॉन्ड है और वो अगर उसको तोड़ दोगे तो वो हाइड्रोकार्बन रहेगा नहीं। हाँ, छोटा हाइड्रोकार्बन बड़ा होगा, हाइड्रोकार्बन तो छोटा होता जाएगा बराबर, लेकिन उसके अंदर दूसरे और भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि आप दूसरा कोई बॉन्ड नहीं बना सकते या तो फिर दूसरा कोई मॉलिक्यूल अंदर ऐड नहीं कर सकते, ऐसी सब चीज़ें हैं, वो देखेंगे हम बाद में। सो अल्केन्स और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, दे आर ऑल्सो नोन एज पैराफिन्स। All carbon atoms in a single molecule are joined together by a single covalent bond in a straight or branch chain. As for example, butane, isobutane, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, अभी आपको पता नहीं चलेगा लेकिन धीरे धीरे पता चलता जाएगा। यहाँ पे दूसरी एक चीज़ है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में, उसमें दो आते हैं, जिसके पास डबल बॉन्ड दो बॉन्ड होंगे एक ही कार्बन दूसरे कार्बन के साथ, तो उसे कहते हैं अल्कीन्स। अगर 3 बॉन्ड होता है एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ तो फिर वो हो जाता है अल्काइंस। तो उसका मतलब ये होता कैसे है कि ये कार्बन है तो कार्बन के पास कितने बॉन्ड्स आते हैं? 4 बराबर। तो ये हो गया कौन सा? अल्केन। ये हो गया अल्केन। अल्किन्स के लिए किस तरह से आता है? एक बॉन्ड यहाँ पे, 2 बॉन्ड यहाँ पे, एक बॉन्ड यहाँ पर। तो अगर आप देखना चाहोगे तो 3 ही बॉन्ड हुए, 1 2 3, एक और बाकी, तो एक यहाँ पे आएगा और इसके लिए भी एक यहाँ पे आएगा। सो नाउ दिस बिकम्स, so alkene becomes carbon, double bond carbon, and satisfaction with the 4 bonds. 1 minute, sorry, this is not there. Correct. So here once again, so C, okay, 1 minute. So here C, 2 bonds are there, these 2 bonds, so total 4. This is C, 1 bond is here, 1 bond is here, so this is 1 2 3 4,
for this one 1 2 3 4. So both the carbons are able to satisfy their own needs of having 4 covalent bonds. So here a carbon is making double bond with the neighboring carbon, so that's why they are considered as alkenes. अल्काइंस, नाउ अल्काइंस, अल्काइंस में कैसा होगा, जैसे कि अगर आपने यहाँ पे देखा ऑलरेडी कि भाई वो कितने बॉन्ड्स बना सकता है, ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना सकता है, बराबर। तो लेकिन अल्काइंस के अंदर क्या, ये अल्कीन है, ये अल्काइन, दिस वन इज अल्कीन, दिस वन इज अल्काइन। सो अल्काइन में क्या होगा कि वो 3 बॉन्ड्स बनाएगा, 1 2 3, यहाँ पर हो गया इस तरह से। सो नाउ इफ यू सी दिस कार्बन इज सेटिस्फाइंग दिस electrons from here and this carbon satisfied the electrons from here, so both of them are sharing electrons. So in order to satisfy their needs of finishing the electrons, so these are 3 bonds formed between them, so they are triple bonds formed between the 2 carbon neighboring carbons, so वो उसे कहते हैं alkynes. So yeah, straight or branch chain hydrocarbon such that there is a double bond between the 2 carbon atoms in the chain, and straight or branch chain hydrocarbon such that there is a triple bond between the 2 atoms in the chain. तो सैचुरेटेड का मतलब क्या होगा, यहाँ पर वो आगे ब्रेक नहीं कर सकते। यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा तो एक बॉन्ड ब्रेक करके दूसरा कोई भी बॉन्ड अंदर ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ पे एडिशन रिएक्शन पॉसिबल है। यहाँ अल्किन में 3 बॉन्ड्स आते हैं, तो 3 बॉन्ड में से एक बॉन्ड तोड़ के कोई ऐड कर सकते हो, दूसरा बॉन्ड करके दूसरा कोई मॉलिक्यूल ऐड कर सकते हो। लेकिन सिंगल जो यहाँ पर होगा, सिंगल मॉलिक्यूल सिंगल बॉन्ड्स के अंदर वहाँ पे पॉसिबल नहीं है। सो here addition reaction is not possible, in this one no addition reaction, here addition reactions are possible. सब्सटीट्यूशन रिएक्शन तो चलता है, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन तो अल्केन्स में आराम से होगा, क्योंकि सब्सटीट्यूट तो करवाना है, एक को निकाल के दूसरे मॉलिक्यूल को बिठा, जैसे कि हाइड्रोजन को निकाल के क्लोरीन को बिठा। यहाँ पे सिर्फ ऐसे मॉलिक्यूल्स आएंगे जो 1 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत रखते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत रखने वाले होंगे तो फिर उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के यूज़ करने पड़ेंगे। दैट यू विल कम टू नो लेटर स्लोली एज यू बी गेटिंग एक्वेंटेड विद द चैप्टर। लेट अस सी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सबसे पहला कॉम्पोजिशन में क्या आएगा, कार्बन हाइड्रोजन तो है ही, क्योंकि वो तो उसका फ्रेंड है, साथ में आप ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, हेलोजन्स लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब भी पाया जाता है। नेचर कैसा है, नॉन आयोनिक, क्योंकि वो आयन्स बनाता नहीं है, इसलिए शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही फॉर्म होगा, इसलिए कोवेलेंट बॉन्ड्स देखने को मिलेगा, आयंस नहीं देखने को मिलेंगे। सॉल्युबिलिटी नॉन आयोनिक है, इसलिए हार्डली सॉल्युबल इन वाटर, दैट इज इनसॉल्युबल, बट सॉल्युबल इन अल्कोहल, ईथर, बेंजीन एक्सेट्रा। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा, वीक, क्योंकि कौन सा बॉन्ड्स है, वीक बॉन्ड्स है, नॉन आयोनिक वाला है कंपेयर टू द आयोनिक वंस, क्योंकि आयोनिक में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और बॉन्डिंग उसका जो होगा वो ज़्यादा रहता है। कंबस्टिबिलिटी, इजी टू बर्न, carbon dioxide and water vapors are the main products. Let us see the next part, that is difference between organic and inorganic compounds. यहाँ पे organic में carbon is the main element, other elements are also found but carbon is not the main element. यहाँ पे इसका नेचर कैसा है, नॉन आयनिक, इसका नेचर कैसा है, आयनिक। यहाँ पे आयंस नहीं बनते, यहाँ पे आयंस बनते हैं। अगर यहाँ पे आयंस नहीं बनते तो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, यहाँ पे आयंस बन रहे हैं इसलिए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड्स होगा, यहाँ पे कोवेलेंट जितने भी नॉन आयोनिक होंगे वो सब कोवेलेंट बॉन्ड से बनते हैं, और जो आयोनिक होगा वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और कभी कभी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हो जाता है। यहाँ पे इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन अल्कोहल, ईथर एंड बेंजीन। यहाँ पे सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। यहाँ पे इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों कम, यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों ज़्यादा है। ऑर्गेनिक के अंदर जो एंड प्रोडक्ट होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर होगा, यहाँ पे एंड प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर नहीं बनता, दूसरा और कुछ सब्सटेंसेस बन सकता है। यहाँ पे बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ऑर्गेनिक कंपाउंड, दिस वन इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दिस वन इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेट अस गो फॉर द काइंड्स ऑफ फॉर्मूला दैट यू आर गोइंग टू बी सीइंग इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। सबसे पहले आएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला का मतलब क्या, द फॉर्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच रिप्रेजेंट्स अ काइंड ऑफ एटम्स। कि भाई मॉलिक्यूलर फार्मूला उसके अंदर कौन से एटम्स है, वो भी एटम्स कितने होंगे, कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, उसके अंदर एक मॉलिक्यूल के अंदर कौन से एटम्स होगा और कितने एटम्स होंगे। जैसे कि अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ कि भाई CH4, तो सबसे पहले CH4 का मतलब क्या हुआ कि भाई कार्बन एक है और 4 हाइड्रोजन होंगे। अगर मैंने ऐसा लिखा C2H6 तो उसका मतलब क्या हुआ कि कार्बन और हाइड्रोजन तो है लेकिन साथ में कार्बन कितने होंगे, तो बोले 2। दैट मीन्स इफ आई एम राइटिंग लाइक दिस CH4, सो विच आर द एटम्स फाउंड हियर, कार्बन के एटम्स और हाइड्रोजन के एटम्स। कार्बन कितना होगा, तो बोले 1,
और हाइड्रोजन कितना होगा, तो बोले 4। सो दिस इज व्हाट द इंपॉर्टेंस ऑफ द मॉलिकुलर फॉर्मूला। सो मॉलिकुलर फॉर्मूला गिव ऑल दिस थिंग्स। एज फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है ब्यूटेन, ब्यूटेन के अंदर लिखा है C4H10। तो पहले तो बताओ कौन से एलिमेंट्स है, तो क्या कार्बन एंड हाइड्रोजन। फिर पूछेंगे भाई कार्बन कितना है, तो बोले 4, हाइड्रोजन कितना है, तो बोले 10। तो ये सब पता चलता है मॉलिकुलर फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला का मतलब क्या, कि भाई अरेंजमेंट ऑफ वेरियस एटम्स इन ऑफ अ मॉलिक्यूल इन अ स्पेस, कि भाई उसका अरेंजमेंट किस तरह से होगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल ब्यूटेन लिया है, तो ब्यूटेन का अरेंजमेंट किस तरह से हो सकता है। हम ब्यूटेन के अंदर कितने कार्बन है, 4। तो जो भी मैं कंपाउंड बनाऊंगा उस कंपाउंड के अंदर 4 कार्बन तो होने ही चाहिए। फिर हाइड्रोजन को हम अरेंज करते हैं। सो लेट अस सी, दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू गेट इट, दैट इज अ स्ट्रेट चेन। सो 1 2 3 4 कार्बन हो गए, और उसको हम इस तरह से, और दूसरा एक है हम इसमें भी, तो इसमें भी 4 कार्बन हो गए, लेकिन इसका नाम बदल गया। एन ब्यूटेन का मतलब आता है नॉर्मल ब्यूटेन, जो स्ट्रेट चेन है। तो यानी कि ये सीधी सीधी जा रही है, ये सीधी सीधी नहीं जाए, ये सीधी जाने के बाद यहाँ से एक ब्रांच आती है। तो जो स्ट्रेट जा रही है उसे कहते हैं नॉर्मल ब्यूटेन, क्योंकि उसके अंदर 4 कार्बन है। और जो ब्रांच वन है ये उसकी ब्रांच निकली हुई है, तो लेकिन है तो कितने कार्बन, 4। तो उसे कहते हैं आइसो ब्यूटेन। सो दिस इज व्हाट द इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इसके पता चलेगा भाई स्ट्रेट है कि ब्रांच है, वो सब बराबर। द नेक्स्ट वन इज कंडेंस फॉर्मूला। कंडेंस फॉर्मूला का मतलब क्या, कि जो कार्बन है उसके आसपास में कितने कितने एलिमेंट्स किस तरह से अटैच किया गया है, उसको हम एक ही स्टाइल में लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सी, यहाँ पे ऐसा, तो ये हो गया उसका एक्सपांशन फॉर्म। यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, तो ये सब हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन को मैं अगर मैं कंडेंस कर दूँ, उसको छोटा कर दूँ, कॉम्पैक्ट कर दूँ, तो क्या आएगा CH4। सो दिस इज द कंडेंस फॉर्मूला, वेल दिस इज द एक्सपांडेड वन, और यू कैन से दिस इज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. So this is what the difference between the molecular formula, structural formula and the condensed formula. See, this is how what the condensed formula of butane looks like. So molecular formula इस तरह का था. So this is the molecular formula, this is the structural formula and this is the condensed formula. यहाँ पे molecular C4H10, यहाँ पे स्ट्रक्चर फॉर्मूला C के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं. पहला अगर आप देखोगे यहाँ पर ये फर्स्ट C है, तो फर्स्ट C के साथ कितने, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 2 और ये 3. तो इस तरह से हो गया CH3 CH2 CH2 CH3. सो कार्बन को चेंज नहीं करते, बाकी सबको हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में ला देते हैं. सो दैट इज कंसिडर्ड एज व्हाट, द कंडेंस फॉर्मूला. सो लेट अस मूव ऑन टू द सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर. अभी नोमेनक्लेचर का मतलब क्या, नामकरण. यानी कि जो कार्बन, हाइड्रोकार्बन्स या तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उसका नाम जो दिया गया है वो किस तरह से नाम दिया गया है. एज फॉर एग्जांपल इन द बिगिनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वर नोन बाय देयर कॉमन नेम्स. जैसे कि मीथेन को बोलते थे मार्स गैस, क्यों, क्योंकि वो मार्सी एरियाज में पाया जाता था. एसिडिक एसिड उसको बोलते थे विनेगर, क्योंकि वो अल्कोहल में से प्रोड्यूस होता था, अल्कोहल प्रोड्यूस फ्रॉम द ग्रेप्स में से प्रोड्यूस होता था इसलिए. लेकिन इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने अलग सा उसको ब्रांच बना दिया, उसे बोल दिया भाई नामकरण, सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर, IUPAC. सो नंबरिंग देने के बाद में फिर धीरे धीरे पता चला कि भाई 1 कार्बन होगा तो उसका नाम ये रखेंगे, 2 कार्बन वाला होगा तो उसका नाम. तो ये सब जो टर्म्स लिए गए वो ग्रीक लैंग्वेज से लिए गए. एज फॉर एग्जांपल अगर 1 कार्बन का एटम होगा तो उसे कहते हैं मीथ, 2 कार्बन होगा तो ईथ, 3 कार्बन होगा तो पहले 1 कार्बन होगा तो मीथ, दूसरा 2 कार्बन होगा तो ईथ, 3 कार्बन वाला प्रोप, 4 कार्बन वाला ब्यूट, 5 कार्बन वाला पेंट, 6 कार्बन वाला हेक्स, 7 कार्बन वाला सेप और हेप्ट, 8 कार्बन वाला ऑक्ट, 9 कार्बन वाला नॉन, यानी 10 कार्बन वाला डेक. तो इस तरह से धीरे धीरे नाम. अभी उसके पीछे तो पूरा कंप्लीट करना, वो डिपेंड करता है आपका सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के ऊपर. लेकिन 1 कार्बन होगा तो हम उससे कहते हैं मीथ, 2 कार्बन होगा तो ईथ, 3 कार्बन होगा तो प्रॉप, 4 कार्बन होगा तो ब्यूट. सिलेबस के अंदर मैक्सिमम हमें पढ़ना है ब्यूटेन तक. सिलेबस में हमें पढ़ना है ब्यूटेन तक. लेकिन कभी कभी वो लोग क्या करते हैं, वो हेक्सेन तक या तो हेप्टेन तक IUPAC नेम पूछ लेते हैं, सिर्फ IUPAC नेम. लेकिन हमें तो पढ़ना है ब्यूटेन तक ही पढ़ना है IUPAC. लेकिन कभी कभी जस्ट टू चेक योर नॉलेज दे आर आस्किंग फ्रॉम 5 कार्बन to 6 कार्बन और 7th कार्बन फॉर IUPAC नेम्स.
बट एनीवे प्रिपरेशन तो हम सिर्फ प्रिपरेशन तो हम जो करने वाले हैं लेबोरेटरी प्रिपरेशन, वो मीथेन, इथेन, इथिन और इथाइन, सिर्फ 4 प्रिपरेशन ही है इस चैप्टर में. ओके, विल कम टू दैट वन लेटर. नाउ व्हाट आर द पैरामीटर्स ऑफ आईयूपीएसी नेम नोमेनक्लेचर. तो सबसे पहले क्या देखना है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, फिर उसके कोवेलेंट बॉन्ड, भाई एक है या दो है या तीन. तो सबसे पहले क्या देखेंगे, उसके कार्बन एटम्स कितने. अगर एक होगा तो मीथ, दो होगा तो हमने जो आगे पढ़ा ना, दो होगा तो भाई ईथ, है ना, तीन होगा तो प्रॉप, चार होगा तो ब्यूट, इस तरह. फिर दूसरा क्या देखना है हमें, कोवेलेंट बॉन्ड्स देखने हैं. तो कोवेलेंट बॉन्ड्स कितने तरह के मिले हमें, एक तरह का कोवेलेंट बॉन्ड दैट इज सिंगल. दो होगा तो फिर एक होगा तो सिंगल बॉन्ड, दो होगा तो डबल बॉन्ड, और तीन होगा तो ट्रिपल बॉन्ड. तो हमें तो ये जो है उसे कहते हैं एन, ये जो है डबल बॉन्ड है उसे कहते हैं इन, और ये जो ट्रिपल बॉन्ड वाला है उसे कहते हैं आइन. और जो पूरा जो है, जो कार्बन एटम वाला जो है उसे कहते हैं अल्क. सो अल्क दैट इज कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ईथ, मीथ, ईथ, प्रॉप, ब्यूट, देन पेंट, लाइक दैट. और पीछे जो हम एन लगाते हैं या तो फिर इन लगाते हैं या तो फिर आयन लगाते हैं, दैट इज रिलेटेड टू द कोवेलेंट बॉन्ड्स. सो अगर सिंगल होगा अल्क के अंदर तो उसे कहते हैं अल्केन, अगर डबल बॉन्ड है तो उसे कहते हैं अल्कीन, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसे कहते हैं अल्काइन. सो दिस इज व्हाट इट इज. सो अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन और क्लोज चेन अरेंजमेंट, ये सब पैरामीटर्स को ध्यान में रखना है. तो चलो आओ देखते हैं अभी पहला सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, फिर हम अनसैचुरेटेड के बारे में जाएगा. पहले जो पहले सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को देखेंगे. तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में आता है अल्केन्स और उसका दूसरा नाम है पैराफिन्स. चलो पॉइंट नंबर 1, द कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन in which the valencies of all carbon atoms are satisfied by single covalent bonds are called saturated hydrocarbon और saturated alkanes. यानी कि कार्बन के पास में हाइड्रोजन 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 सेटिस्फाई कर रहा है पूरा का पूरा, तो उसे कहते हैं अल्केन्स. उसकी जनरल फॉर्मूला क्या है, तो क्या CnH2n+2, वेर एन का मतलब अल्क, अल्क का मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द मॉलिक्यूल. अगर दो एक है तो उसे कहते हैं मीथ, अगर दो है तो उसे कहते हैं ईथ, तीन है तो प्रॉप, चार है तो ब्यूट. दैट इज कार्बन नंबर्स, बराबर. एक कार्बन वाला, दो कार्बन, जो हमने आगे पढ़ा वो. मान लो कि भाई 6 नंबर वाला है, तो 6 नंबर वाला एन का मतलब क्या हुआ 6, तो हम C6H2 6+2, तो क्या मिलेगा C6H14, यानी कि उसका मतलब क्या, 6 कार्बन का कंपाउंड हो गया. तो 6 को क्या कहेंगे, हेक्स. और एन किसके लिए, क्योंकि वहाँ पर कितना बॉन्ड बना रहा है, एन किसके लिए है, सिंगल बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के लिए. अगर इन होता तो कहीं कोई जगह पे डबल बॉन्ड आपको देखने को मिलता. लेकिन हम अभी तो अल्केन्स के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए आपको एक बॉन्ड के बारे में ही पढ़ना है, सिंगल बॉन्ड्स के बारे में ही पढ़ना है, सिंगल बॉन्ड्स. ओके, लेट अस गो. द नेम ऑफ द गिवन हाइड्रोकार्बन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय अटैचिंग एन. सो दैट इज व्हाट इट इज, बाय अटैचिंग व्हाट, एन, अल्क एन, यानी कि अल्केन्स. सो 6 कार्बन का है तो हेक्स एन, 3 कार्बन का है तो प्रोपेन, 4 कार्बन का है तो 4 कार्बन को हम कहते हैं ब्यूट, और पीछे सिंगल बॉन्ड, उसके अंदर सिंगल बॉन्ड है इसलिए पीछे लगेगा एन, सो ब्यूटेन. सो इस तरह से चलता है. सी हियर, 1 carbon atom with single bond, then it is methane. 2 carbon with a single bond with each other, then it is ethane. 3 carbon bond with each other, single bond with each other, then it is propane. 4 carbon atoms with a single bond with each other, that is butane. So इस तरह से. So एक कार्बन में तो सिर्फ each other नहीं आएगा, एक कार्बन के साथ में तो हाइड्रोजन ही आता है, तो इसलिए वो तो ऐसे भी सिंगल बॉन्ड, तो एक कार्बन के लिए तो ऐसे भी सिंगल बॉन्ड ही होता है. ये 2 कार्बन और 3 कार्बन और 4 कार्बन के बीच में आपको डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दिखाई देता है. तो यहाँ पे एक कार्बन के लिए तो हम मीथेन ही है, मीथेन के बाद डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड नहीं आता, बिकॉज मीथेन इटसेल्फ इज हैविंग ओनली 1 कार्बन. हम तो बात कर रहे हैं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के उसमें जिसके अंदर 2 कार्बन के बीच में आना चाहिए, और मीथेन में पॉसिबल नहीं है. क्यों मीथेन में पॉसिबल नहीं है, बिकॉज मीथेन के अंदर तो सिर्फ एक ही कार्बन है. 2 कार्बन होता या 2 से ज़्यादा होता तो पॉसिबल होता. ये राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अल्केन. सो अल्केन, अल्क इज अ नंबर ऑफ कार्बन एंड एन इज रिलेटेड टू द सिंगल बॉन्ड. सो 2 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो 2 कार्बन तो ईथ एन, 3 कार्बन के बीच में कहीं सभी जगह पे सिंगल बॉन्ड है तो उसे कहते हैं प्रोपेन. 4 कार्बन एटम के बीच में सभी जगह पे सिंगल बॉन्ड है तो उसे कहते हैं ब्यूटेन.
चलो देखते हो किस तरह से ऑक्टेट को सेटिस्फाई कर रहा है, एंड हाइड्रोजन भी अपना ऑक्टेट को सेटिस्फाई कर रहा है। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 और कार्बन की अगर आप इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देखते हो तो 2 4। तो यहाँ पे देखो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जो दिया है वो आउटर मोस्ट सेल के अंदर है। दिस इज द आउटर मोस्ट सेल, 4 इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज द आउटर मोस्ट सेल ऑफ हाइड्रोजन हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन्स, एंड दे आर ऑल शेयरिंग टू फॉर्म अ कोवेलेंट bonds and forming CH4. So what is it saying? Hydrogen has 1 electron in its valence shell and it needs 1 more electron to complete its duplet rule, while carbon has 4 electrons in its valence shell and needs 4 electrons to complete its octet rule. Hence 4 hydrogens satisfy the need of 4 electrons to complete the octet rule of carbon by sharing electron and forming covalent bond. So this is how the covalent bond between the carbon and hydrogen in alkanes are formed. Between the carbon and carbon also the same situation. So let us see the alkanes in the diagram or in the table. So here first of all, here meth CH4, condensed formula CH4, and the structure formula eth C2H6, propane C3H8, normal butane that is straight chain that is C4H10, and isobutane C4H10. See both the molecular formula here, molecular formula for the butane are same, but the structure formula is different. These are known as isomers. We are going to study isomers in the next session, but here you just keep all these things in mind. You require to get acquainted with the alkanes. So this is isobutane. It also takes place with the pentane. So it is possible this normal butane and isobutane, or you can say the straight chain and branch chain is possible after 4 carbon or from 4 carbon to the rest, because 1 2 3 doesn't have any straight chain or doesn't have any branch chain. It is all straight. So 1 straight, 2 straight, 3 straight, but from 4 it can be straight or branch. For alkanes it can be straight or branch. So here pentanes, you can see isopentane and normal pentane. Isopentane branch 1 and normal pentane unbranched one. Normal isopentane, this is isopentane, this one is isopentane. You can see the branch here. This is the main one and the branch comes out. So from here it is a branch, but for the normal pentane it is completely non-branch, or you can say straight. This may be happen with the hexane also. Hexane also it is possible. Another like many branches are coming out, like as for example here neopentane. You see here one is a main one and another one is like this one and then this one. So it is a neopentane. Okay, anyway we move on further. Naming for an unsaturated hydrocarbons. How will you name the unsaturated hydrocarbons? That is, which are the unsaturated hydrocarbons? That is alkenes and alkynes. Alkenes is related to double bonds and alkynes are related to triple bonds. So here the general formula is what for alkene? The general formula for alkene is what? 2CnH2n. That means this is the general formula for alkenes. That means it has double bond in between. While alkynes, the general formula is CnH2n minus 2. It is related to what? Triple bonds between the two carbon neighboring atoms. So let us see here. So this is the ethane. Eth means, here example is given of ethane. Eth means how many carbon? 2 carbons. Ane means only single bond. So here single bond is shown. So now if you remove this one, if you remove this bond, then it shares the electrons. So free electrons which are available will be shared with each other and forms double bond. If you remove this bond, then it is going to share one more electron and forms triple bonds. So alkane, alkene, alkyne. Alkane is ane, alkene is ene, alkyne is ine. For 2 carbon it is ethane, for 2 carbon it is ethene, and for 2 carbons, it is 2 carbons only, but 2 bonds are there. So here once again, so alkane, ane, alkene, ene, alkyne, ine, and it is for 2 carbons single bond it is ethane, for 2 carbons double bond it is ethene, for 2 carbons triple bond it is ethyne. So this is how you give the names for alkene and alkyne. So see the table here, methane CH2, but methane CH2, but see what it says, not possible. There must be a double bond between 2 neighboring carbon atoms, and in methane or methane thus the name is given, but it is not possible. So it is not there, and it starts from where? It starts from
ethene, propene, butene, butene, pentene, like that. Why? Because it requires two carbons to form double bond. Sorry, two carbons to form double bond, or two carbons to form triple bonds. So methane is not there. Where it is not there? It is not there in alkenes. It is not there in alkenes, as well as it is not there in alkynes. So methane not possible in alkene and not possible in alkyne. Why it is not possible? For because it has only one carbon. Okay, let us move on to the another one, that is ethene. Common name is ethylene. Ethylene, C2H4, and the structure propene, propylene, C2H6, sorry, C3H6. It's a propene, C3H6, and the structure one butene, that is the double bond is been seen on between first and second carbon, and it is C4H8. 2 butene, it is seen between second and third carbon, so it is 1 butene. So one here, 1 represents between what carbon atoms the bond is. If the carbon atom is between 1 and 2, then it is known as 1 butene. If the carbon atom is between C3 and C4, then it is 3 butene. If the carbon atom, not with the butene but with the another one, because butene the naming will be changed, naming will be same as that 1 butene, because it depends upon the numbering of carbon atom in the IUPAC name. But for 2 butene, if it is between C2 and C3, then it is considered as 2 butene. So that's what it is. We'll see the naming and numbering afterwards. 1 pentene, 2 pentene, like this. And in alkynes, again, there is no methane. Why? Because there is only one carbon, not possible to have triple bond with the other carbon, because other carbon is not there. Then ethyne is known as acetylene. Propyne, 1 butane, 2 butane, 1 pentyne, 2 pentyne. So this is all about what? The alkane, alkene, and alkynes. I hope you understood this session. We'll move on to the isomer and isomerism in the next session. If you have any comments or any sort of doubts, please let me know in the comment box. I hope you enjoy. Thanks very much for your patience. See you guys.